Hello and welcome to the session 4 of business organization. In this session we will going to study about partnership firm, and the topic will be covered on this session is the introduction, features, kind of partnership firms, kind of partners, requisites of an ideal partnership firm, merits of partnership firm, demerits of partnership firm, partnership deed and registrations of a firm. Now let's start with the introduction of a partnership firm. As we're discussing about the introduction of a partnership firms, the partnership is what? Partnership is the associations of two or more person. ये दो से ज़्यादा लोगों की association होती है, जिसके अंदर they come together, they introduce themselves with the certain kind of an investment. वो अपने business के अंदर किसी न किसी तरीके की investment करते हैं और इस investment के behalf पर उनकी profit sharing होती है और उनकी earning and basically वो एक किस पर्पस के साथ वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं बेसिकली टू अर्न दी प्रॉफिट्स. तो यस, what's the slide is mentioning, we going through with these slides. Now the first is the limitations and deficiency of a sole proprietorship in a joint Hindu family. Business with respect of the limited financial resources, limited managerial ability and skills and concerned risk leads to the emergence of a partnership firm as of the form of a business organization. Yes, अगर देखा जाए तो हमने इससे पहले के सेशंस में डिस्कस किया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म होती है, व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इस तरीके की हम लोगों ने स्टडीज की. When we actually studied about the type of a business या type of or a form of a business organization, we come to know about the sole proprietorship. कि sole proprietorship क्या होती है, जो एक सिंगल ओनर होता है, जो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, that comes into the sole proprietorship. Joint Hindu family. Joint Hindu family is the collaborations of one family, जिसके अंदर उसके सारे members जो हैं as a member और as a participant of a business perform करते हैं. हमने जब उनके बारे में स्टडी किया था तो वी स्टडीड अबाउट फ्यू थिंग्स कि उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं. लिमिटेशंस का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल एबिलिटीज एंड स्किल्स, लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द रिस्क और गेटिंग दैट रिस्क कॉन्सेप्ट. तो इन सब से हमेशा किसी ना किसी तरीके के रिस्क राइज होते हैं. सो पार्टनरशिप इज अगेन कॉन्सेप्ट, और हम लोग ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे रिस्क को ओवरकम करता है. बीइंग अ पार्टनर्स दो से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं. इन दैट टर्म पार्टनरशिप फॉर्म इज लिटरली एसोसिएटेड टू और मोर पर्सन. सो इन दैट केस आपके जितनी भी फाइनेंस की लिमिटेशंस होती हैं, जितनी भी मैनेजरियल एबिलिटीज की लिमिटेशंस होती हैं, वो मिनिमाइज हो जाती हैं, बिकॉज देन the concept of a business comes from the many minds, the concept of finances comes from the many hands. So in that sense the partnership firm is actually one of the form of the organization जो कि इन सब limitations को कम करती है. So that is why a partnership organization is an association of 2 or more person who carry on business together for a purpose of earning profit, जिसमें लोग business को carry forward करते हैं just to earn a profit. Now, according to our Partnership Act, Section 4 of Indian Partnership Act, partnership की proper definition क्या है? Partnership की proper definition है the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or by of them acting for all. That means it is one of the relationship between the person. ये उन दो persons के बीच में, 2 से ज़्यादा person के बीच में relationship है जो कि एक sharing contribution में आते हैं, अपने profit contributions में आते हैं कि हाँ business से होने वाला कितना भी profit जो है हम आपस में share करेंगे, और at the same time वो profit कैसे होगा? वो profit उनके enactment से होगा, मतलब जितनी भी वो activities करेंगे, जितनी भी वो performances करेंगे, वो सब सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म के डेफिनेशन में लिखा है. देन person entering into the partnership agreement are known by a partners and collaboratively a firm or a partnership firm. That's very obvious. जो person उस एक फर्म को चला रहे हैं वो लोग पार्टनर्स होंगे, और yes इसके बाद जो एक पूरी एक फर्म बनती है उसको हम पार्टनरशिप फर्म्स बोलेंगे या फर्म बोलेंगे. Now features. एक पार्टनरशिप फर्म के
क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? सबसे पहला, 2 or more person, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। सेकंड, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप नहीं मानी जाती। देयर ऑलवेज अ सर्टेन काइंड ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, 2 लोग आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हुए कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, तभी वो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर पाएंगे। देन लॉफुल बिजनेस, यस, पार्टनरशिप फर्म का जो ओवरऑल पर्पस होगा वो पर्पस यही होगा कि उन्हें एक लीगल बिजनेस, एक लॉफुल बिजनेस को क्रिएट करना है। शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि 2 लोग पार्टनरशिप में तब आते हैं व्हेन दे वर एक्चुअली अग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Agency relationship, yes, partnership firm is a kind of an agency relationship because जब एक partners, when the partners are actually entered और वो अपने behalf पे काम करवाते हैं, then the partners becomes the principal and the person who is actually performing the task that becomes the agent of that partner. So in that term, this is the agency relationship, जिसके अंदर principals और agent होते हैं और वो एक consideration में काम perform करते हैं। Then unlimited liability, unlimited liability is हमारे पार्टनर्स की जो liability होती है वो unlimited होती है। That means they can easily generate the profit, they will have little limited unlimited liability, कि उन पे किसी भी तरीके के रिस्क जनरेट हो सकते हैं, कितने भी नंबर्स ऑफ। Then non transferability of interest, yes, आपका इंटरेस्ट जो होता है, आपका जो पार्टनरशिप फर्म होती है, आप उसका मेंबर हो तो आप अपने उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट इज नॉन ट्रांसफरेबल। Now we were moving towards the kinds of partnership firm, कितने तरीके की, कितनी kinds of partnership firms होती हैं। When we were discussing about kinds of partnership firm, the first one is partnership at will. Partnership at will, that means ये कब क्रिएट होती है? दैट मीन्स विल का मतलब जो अपनी एक विलिंगनेस से क्रिएट होते हैं। तो इसके अंदर 2 कंडीशंस होती हैं कि किस किस केस में पार्टनरशिप एट विल कंसिस्ट हो सकती है। सबसे पहला, व्हेन द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड टू कैरी ऑन बिजनेस विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पीरियड ऑफ टाइम। पार्टनरशिप एट विल तब बनती है जब इन्होंने अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने का डिसीजन लिया है, पर ये नहीं बताया कि वो इस बिजनेस को कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो दैट इज ऑन द विल बेस, कि जब तक दोनों पार्टनर्स चाहते हैं तब तक वो इस पार्टनरशिप फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसी के अंदर पार्टनर एट विल के अंदर सेकंड इज व्हेन नो प्रोविजन इज मेड एज टू व्हेन एंड हाउ द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, जब किसी भी तरीके के प्रोविजन नहीं दिए गए हैं कि पार्टनरशिप कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, तो उस केस में अगर ऐसी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप होती है जिसमें डिफाइन नहीं है कि कब वो शुरू होगी, कब वो पार्टनरशिप खत्म होगी, तो इस केस के अंदर हम उसे पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। देन पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज बेसिकली जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनती है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब इसको क्रिएट किया जाता है तो बहुत ही स्पेसिफाइड टर्म्स के लिए क्रिएट किया जाता है। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो टाइम की जो डिमांड थी उसके हिसाब से आप और आपके पार्टनर्स परफॉर्म करते हैं, एंड देन जब वो टास्क पूरा हो जाता है या फॉर्म इज कंप्लीटेड। Then the joint venture. Joint venture is another type of partnership also. So it is what? It is organized for the completing a specific task. ये एक इसलिए organize की जाती है ताकि आप specific task को perform कर सको, और it's in a venture during a specific period. जो एक specific period में हम venture करते हैं ना, what is venture? जब 2 या 2 से ज़्यादा की industries जो organization है, they come with a concept कि वो साथ में मिलकर काम करेंगे. Then it may involve joint consignment of a good, or at the same time there always some kind of a consignment of a goods between that 2 person. वो joint venture होता है. Now limited partnership. Limited partnership is another फॉर्म ऑफ पार्टनर जिसके अंदर आपके पार्टनर्स की हमेशा एक लिमिट डिफाइन होती है कि एक लिमिट के बाद वो किसी भी तरीके की कॉन्ट्रीब्यूशन अपने बिजनेस के अंदर नहीं कर सकता. दैट इज लिमिटेड पार्टनरशिप. नाउ काइंड ऑफ पार्टनर्स, किस किस तरीके के पार्टनर्स हमारे पास बेसिकली अवेलेबल होते हैं. सो पार्टनर्स के बारे में बात की जाए या उनके स्टाइल या उनके काइंड के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला आता है एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर. एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं टुवर्ड्स देयर वर्क,
towards their performance towards their company, और जो actually ये believe करते हैं कि performance करने से ही business grow करता है. That comes into the active or actual partners. Then sleeping or dominant partner. Sleeping और dominant partners वो होते हैं जिनका contribution is basically to introduce the capital only, जिनका कॉन्सेप्ट सिर्फ बिजनेस में कैपिटल डाल के छोड़ देना है. दैट कम्स इनटू द स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्ट में. ये किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी के अंदर काम परफॉर्म नहीं करते, ये किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. देन थर्ड, पार्टनरशिप इन दी प्रॉफिट ओनली. दैट मीन्स वो पार्टनर्स जो सिर्फ आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आते हैं, रादर देन शेयरिंग दी मैनेजरियल स्किल्स कॉन्सेप्ट, और रादर देन शेयरिंग और सेटअप और एस्टेब्लिशिंग दी बिजनेस. देन पार्टनर्स बाय एस्टॉपल. पार्टनर्स बाय एस्टॉपल बेसिकली जो कि बेसिकली एस्टॉपल में जो कि ये शो करता है कि एक आपका वो पार्टनर जो कि आपकी ही पार्टनरशिप के नाम पर किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में आ रहा है, किसी तरीके की डीलिंग में आ रहा है, बट एट द सेम टाइम आपने उसे रोका नहीं है उस काम के लिए. दैट कम्स बाय एस्टॉपल. इन फॉर्मल टर्म्स इट इज इफ अ पर्सन रिप्रेजेंट द आउटसाइड वर्ल्ड बाय द वर्क or written or any conduct of action that he is the employee of that further organization, and employee at the same time not ratifying it to concluding that about that particular person. So in that case वो हो जाता है partner by estoppel. आपकी कंपनी का मेंबर नहीं है पर वो आउटसाइड वर्ल्ड को यही शो कर रहा है कि वो मेंबर है, और इन टर्म्स में इस केस में आप भी किसी तरीके के रिएक्शंस नहीं दे रहे हो, तो दैट्स प्रॉब्ली लीड्स टू दी एजेंट. वो पर्सन आपके एक एजेंट की तरह परफॉर्म करने लगता है. सो दैट कम्स इनटू दी पार्टनर्स बाय एस्टॉपल. काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स वी actually go through with the kinds of partnership. Now we are moving towards the requisite of an ideal partnership. एक आइडल पार्टनरशिप की क्या प्री रिक्विजिट हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए व्हेन वी टेकिंग अबाउट द आइडल पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप फर्म किस किस तरीके की होती हैं. सो यस, इसके लिए अगर हम रिक्विजिट्स की बात करें तो द फर्स्ट वन इज द गुड फेथ. एक अच्छी पार्टनरशिप तभी कंडक्ट होगी जब दोनों पार्टनर्स या दो से ज्यादा जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी आपस में एक दूसरे पर फेथ, दैट मींस दे बिलीव इन ईच अदर, और वो एक फेथफुल ट्रस्टवर्दी तरीके से काम परफॉर्म कर रहे हैं. कॉमन अप्रोचेस, यस, वो दोनों अपने आप में लेकर एक कॉमन अप्रोच हो, उनके कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन कॉन्सेप्ट. सो इन दैट केस वो ऑटोमेटिकली कॉमन अप्रोच में आ जाते हैं. देन रिटन एग्रीमेंट. रिटन एग्रीमेंट इज अनदर कॉन्सेप्ट कि दोनों ही पार्टनर्स एक रिटन एग्रीमेंट में होने चाहिए. जस्ट एक रिटन एग्रीमेंट हमेशा एक एविडेंस की तरह काम करता है, एक प्रूफ की तरह काम करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनरशिप फर्म के लिए. देन registration, yes, the partnership should be required to be registered. So in that case registration जैसे प्रोसीजर्स को भी फॉलो करना पड़ता है एक गुड और आइडल पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करने में. देन रिक्वायर्ड कैपिटल. आपको जितनी भी रिस्पेक्टेड कैपिटल की जरूरत है अपनी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को चलाने में, यू कैन कंट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर कैपिटल. एडुकेट कैपिटल की भी जरूरत होती है एक आइडल पार्टनरशिप को बनाने में. देन स्किल्स एंड टैलेंट. यस, have a skills and talent जिस भी business में वो enter हो रहा है with the help of partnership firm. So in that case it is necessary कि वो उस skills and talent को उसके पास वो skills and talents हो और उसको वो show भी करे by performing in that partnership firm. And then stability. Stability issue is one of the biggest issue जो कि होना बहुत जरूरी है. That means stability factor. ऐसा नहीं है कि आज आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट कुछ और था, आज आपका बिजनेस पर्पस कुछ और था पार्टनरशिप फर्म का, कल कुछ और है. सो इन दैट केस एक स्टेबिलिटी इशू नहीं आता. सो इन दैट टर्म्स स्टेबिलिटी इशू आना बहुत जरूरी होता है. देन वी वर मूविंग टूवर्ड्स द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के क्या क्या मेरिट्स होते हैं. अगर हम लोग मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स आर बेसिकली द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप कि हमारे पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला ईज ऑफ फॉर्मेशन. यस, हमारी पार्टनरशिप फर्म बहुत इजीली फॉर्म्ड हो जाती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती. वी रिक्वायर्ड टू मोर देन दैट पर्सन. दो या दो से ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत होती है. दो पर्सन भी उस पार्टनरशिप फर्म को ओपन कर सकते हैं, बट यस इट इज ईजी टू फॉर्मेशन. देन larger resources. Yes, it's actually required a good and a large resources. अगर
इन्वेस्टमेंट बड़ी है तभी पर्सन किसी ना किसी तरीके की पार्टनरशिप में आता है, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बड़े हैं तभी पर्सन किसी ना किसी तरीके की पार्टनरशिप में आता है, अदरवाइज देयर वर द मेनी ऑप्शंस लाइक सोल प्रोप्राइटर्स। देन combined abilities and judgment, combined abilities and judgment is basically जब आपकी एक की एबिलिटी पे बिजनेस चल रहा था बट अब दो या दो से ज्यादा की एबिलिटीज पर आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि उतनी ही ज्यादा अच्छी स्किल्स और उतनी ही अच्छी एबिलिटीज होंगी किसी भी तरीके की काम को करने की। देन फ्लेक्सिबिलिटीज, फ्लेक्सिबिलिटीज इज यस योर पार्टनरशिप फर्म इज वेरी मच फ्लेक्सिबल कि आप उस फर्म में किसी भी तरीके की चेंजेस या किसी भी तरीके की अकरेंसेस को देख सकते हो। देन क्विक डिसीजंस, क्विक डिसीजंस अगर मेनी ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, दो मेंबर्स हैं, दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, दो लोगों की मैनेजर स्किल है, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि उतने ही वो क्विकली डिसीजंस भी लेंगे। देन कोजन ऑपरेशंस, कोजन ऑपरेशंस दैट मीन्स आप पहले ही अवेयर हो जाते हो अनसर्टेनिटीज को लेकर बिकॉज यू वर डीलिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ना two minds, two strategies was forming there. Then survival capacity, सर्वाइवल के चांसेस जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के मार्केट में कंपैरेटिव टू अदर फंड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इन द टर्म्स ऑफ अगर हम फाइनेंशियल फैक्टर्स में देखें उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, अगर हम लोग इन्हें मैनेजरियल टर्म्स में देखें तो मैनेजरियल टर्म्स में इनके पास अच्छी होती हैं। तो वी कैन कंसीडर दैट देयर वाज अ सर्वाइवल कैपेसिटी इज गुड एंड वेरी हाई इन द पार्टनरशिप फर्म। Then next is better human and public relationship. Yes, it is one of the ability also जो कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में होनी चाहिए कि आप उतने ही ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक हो, ह्यूमंस के साथ डील करते हो, एक पब्लिक रिलेशनशिप बनाने में डील करते हो ताकि वो आपको फर्दर बेनिफिट्स दे सके। देन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी इसके अंदर होता है, जैसा हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था कि पार्टनरशिप फर्म एक एक्चुअली एजेंसी रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकता है बिकॉज देयर ऑलवेज अ सर्टेन प्रिंसिपल और एजेंट। और माइनर की अगर हम बात करें या माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बात करें तो माइनर कैन बी है ना एजेंट फॉर एनी कंपनी, सो इन दैट केस एक प्रोटेक्शन होती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के आगे। देन डीमेरिट्स, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ऐसी कौन कौन सी डीमेरिट्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म को इफेक्टिव होने से रोकती हैं। सबसे पहले लैक ऑफ हार्मनी। यस, अगर दो पार्टनर्स के बीच में एक हार्मनी रिलेशनशिप नहीं है, एक ह्यूमनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो पार्टनरशिप फर्म एक तरीके से खराब ही हो जाएगी। देन the other is limited resources, limited resources in the terms of कि अगर आपकी हमने भी बोला था अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हैं तो एट द सेम टाइम देयर वाज द लिमिटेड रिसोर्सेज एज वेल एज। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस स्टेबल नहीं है, आपका बिजनेस सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, सही से ग्रो नहीं कर रहा है, स्टेबिलिटी इशू है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है इंस्टेबिलिटी ऑफ ना बिजनेस। देन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो एक पार्टनरशिप फर्म को एक पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक रिलेशनशिप्स के साथ जनरेट करना चाहिए, जो उसका एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, वही उसका नेगेटिव फैक्टर होता है। रीजन मीनिंग कि इट इज एक्चुअली डीलिंग विद द पब्लिक कॉन्फिडेंस। हमारे यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस उतना ही कम होता है कि पार्टनरशिप करेक्टली परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। देन कम्स द रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। रिस्क फॉर इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब कि आपने जो भी अथॉरिटीज आपस में एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट की होती है, प्रोबेबली वो अच्छे से नहीं हुई है। अगर वो प्रॉपरली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बट ऑब्वियस कि आपने जितनी भी अब तक एक्टिविटीज एक पार्टनरशिप फॉर्म में ली होती है वो सब खराब हो जाती है। देन दी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स कि आप अपना जो भी आपका पार्टनरशिप का इंटरेस्ट है वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दैट मीन्स इट इज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर योर interest, your partnership concepts, your business concept to the another person. And then yes, social losses. अगर आप अच्छे से societal interactivities नहीं कर पाते हो, which is required one, so in that case आप अपने social contacts को lose कर सकते हो. There was a chance of losing them. Then we are moving towards the partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली अ रिटन एग्रीमेंट सेटिंग आउट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप इज नोन बाय पार्टनरशिप डीड।
तो पार्टनरशिप एक वो रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है, जो कि जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर्स हमारे लिखते हैं अबाउट द पार्टनरशिप फर्म। तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि ये एक दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, जिसमें ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। इफ इट्स अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंपनी के मेंबर्स रिटन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि वो एक पार्टनरशिप डीड के साथ पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यस, हम इसे कह सकते हैं कि इट इज डिजायरेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि हमेशा से ये माना गया है कि अगर हमें किसी भी तरीके की कॉन्ट्रैक्चुअल इट्स गुड टू हैव एन एग्रीमेंट। सो इन दैट टर्म्स वो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्स हो तो इट्स प्रॉब्ली लीड्स टू बी कॉन्ट्रैक्ट। Then at the same time it should be properly stamped and registered, that is the in terms of कि आप जो भी पार्टनरशिप डीड स्टार्ट कर रहे हो वो पार्टनरशिप डीड प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो और स्टैम्प्ड हो। सो केयरफुल, अगर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अ केयरफुल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट डिफरेंसेस व्हिच मे डेवलप अमंगस्ट द पार्टनर्स। दैट इज अ केयरफुल ड्राफ्टेड पार्टनरशिप डीड is actually helping into bringing the difference which may develop amongst the partners and in ensuring smoothing running of a partnership businesses। तो ये एक वो डील होती है जिसके अंदर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ डील करते हैं, अगर किसी भी तरीके की डिफरेंसेस हैं तो उसको भी मिनिमाइज करके, और जिसकी हेल्प की वजह से हम एक स्मूथ बिजनेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। Then it should be properly stamped and registered, जो कि अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि एक रिटन एग्रीमेंट होता है, तो ये अपने आप में जरूरी है कि इसका स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड होना। स्टैम्प और रजिस्टर्ड होने के लिए ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहला है द नेम ऑफ फर्म, यानी कि आपने जो भी फर्म का नाम डिसाइड किया है वो मेंशन करोगे, नेम ऑफ फर्म। देन नेचर ऑफ प्रपोज्ड बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय अ पार्टनरशिप, किस नेचर का बिजनेस जो है पार्टनर्स एक्चुअली कैरी करने वाले हैं, नेचर ऑफ प्रपोज्ड बिजनेस टू बी कैरिड आउट। ड्यूरेशन ऑफ एन पार्टनरशिप बिजनेस, वेदर इज टू बी रन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ अ टाइम और वेदर इट इज टू बी सॉल्व्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर। सो दैट मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस टाइम आपकी पार्टनरशिप फर्म शुरू हुई, किस टाइम तक चलेगी, या क्या उसकी ड्यूरेशन, क्या उसका टास्क है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितने लंबे तक चलेगी, क्या प्रॉफिट जनरेट करेगी, पर्पस क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें मेंशन करना। फोर्थ, the capital to be contributed by each partner, it may be remained the capital contribution is not necessary to become a partner for. One can contribute his organization power, business acumen, managerial skills, etc. instead of capital. Yes, हमारा जो कैपिटल का कॉन्सेप्ट होता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कैपिटल की कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं और उस कॉन्ट्रीब्यूशंस को ध्यान में रखते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ पावर शेयरिंग्स करती है, प्रॉफिट शेयरिंग करती है, बट एंड यस एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उस कॉन्ट्रीब्यूशन से या जो भी उन्होंने फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसके बिहाफ पर आप किसी भी तरीके की अपनी यूजेज कर सको। तो इट इज कंसीडर्ड एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओनली, और एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम गिविंग द कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ money, there is also needed to give the contribution in terms of managerial skills on the basis of acumen. Contribution देते हो, so that means you are actually working for your organization. Then amount that can be withdrawn from the firm by each partner, जब किसी भी तरीके की अमाउंट जो है फर्म से विड्रॉ करवा सकते हो by each partner. So this is again the prerequisite. Then the ratio in which the profit and or losses are to be shared, यानी कि किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होंगे। नॉर्मली किसी भी तरीके की पार्टनरशिप फर्म को शुरू करते वक्त दिस इज ऑल्सो ऑलवेज डिफाइंड दैट कि किस तरीके की प्रॉफिट शेयरिंग होगी, इधर इट्स रिटन टू द परसेंटेज फॉर्म और हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उस हिसाब से पार्टनर्स गोइंग टू डिसाइड रेशियोज होंगी प्रॉफिट डिविजन्स की, बट यस देयर इज अ रेशियो टू डिवाइड द प्रॉफिट। Then whether any interest is to be allowed on a capital and if so the rate of interest, अगर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है किसी भी तरीके से की कैपिटल पे तो इन दैट केस वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफाइंड होना चाहिए। मेंटेनेंस एंड ऑडिट,
should be a proper maintenance of the records, proper maintenance of the concepts of partnership firm. तो maintenance of recording, that means हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो वन टाइम वर्क नहीं होता है. हमारी पार्टनरशिप फर्म जब काम करती है तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ही काम करती है. आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्स टाइम से पे भेजे, उसके बाद सारी उसकी कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन सा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आया, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हमेशा प्रिपेयर रखना, बनाकर रखना और एट द सेम टाइम further utilize it. Then matter relating to the admission of a new partner. अगर किसी भी तरीके का न्यू पार्टनर आपको ऐड ऑन करना हो तो इट इज अगेन रिलेटेड टू कि जिससे आपकी हिंड्रेंस एक पार्टनरशिप फॉर्म पर आ सकती है. बट एट द सेम टाइम अगर आप उस न्यू पर्सन के साथ, न्यू पार्टनर्स के साथ एक अच्छे से काम करते हो, एक प्रॉपर तरीके से काम करते हो, तो इट्स प्रॉब्ली लीड टू दी गुड और पॉजिटिव सेंस. देन मैटर रिलेटिंग टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पर्सन. दैट मीन्स अगर आपका पर्सन जो है, जो कि पार्टनरशिप फर्म में था, वो रिटायर हो जाता है, तो इन दैट केस क्या किया जाएगा? इन दैट केस उसने जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन की होती है, उसकी जितनी भी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन होती हैं, वो उस पर्सन को दे दी जाती है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स अबाउट द पार्टनरशिप डीड. देन द अनदर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी ड्राइंग. अगर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ड्रॉ कराया हुआ तो उसमें भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा. देन वेदर द लोन्स कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम दी पार्टनर्स और इफ सो द रेट ऑफ एन इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन. अगर किसी भी तरीके का लोन भी कंट्रीब्यूट हो रहा था, इन दैट केस वो लोन भी आगे फर्दर कंट्रीब्यूट एक इंटरेस्ट रेट पर ही उसको आगे चुकाना पड़ेगा. देन अमाउंट ऑफ अ सैलरी और कमीशन पेबल टू दी पार्टनर्स फॉर देयर सर्विस. एट द सेम टाइम पार्टनर्स गेट सर्टेन काइंड ऑफ कमीशन एंड सैलरीज ऑल्सो. पार्टनर्स को भी काम परफॉर्म करने के आगे सैलरीज एंड कमीशंस पे होती है. Then method of valuing goodwill on the admissions on the death or retirement of the partner as the same जो कि हमने पहले भी पढ़ा था रिटायरमेंट केस में, कि अगर पर्सन की रिटायरमेंट होती है तो उस केस में उसे हम लोग गुडविल अराइज करके देंगे. पर बिल्कुल सेम ही डेथ केस में भी होता है. अगर हमारे पार्टनर की डेथ हो जाती है, सो इन दैट केस आप उसके लिए क्या करेंगे? यू एक्चुअली ब्रिंग्स दैट, जनरेट दैट वैल्यू. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. The workers that is entrusted to each partner is better stated in the deed itself. So that means the distribution of managerial responsibility. Procedure for the dissolutions of the firm and the mode of the settlement of thereof. That means कि अगर किसी भी तरीके का जैसे सपोज पार्टनरशिप फर्म आपको खत्म करनी है तो उसका डिसोल्यूशन भी आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से करके देंगे जैसे एक मोड ऑफ सेटलमेंट होती है. Then arbitration in case of a dispute amongst the partner, the deed should be provided the mentioning from setting the dispute or the difference of the opinions. So that is the concept कि अगर आपको किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट को या डिसॉल्व करवाने के लिए किसी भी तरीके की कमेटी बिठाने की जरूरत पड़ रही है, आपको आर्बिट्रेशन की जरूरत पड़ रही है. तो इन दैट सेंस आर्बिट्रेशन कम्स इनटू पिक्चर बट लिटिल बिट स्ट्रिक्ट प्रोसीजर. बिल्कुल एकदम उनका एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू वो काम करते हैं. देन यस we were moving towards the next topic which is registration of firm. Registration of firm basically क्या होता है कि जब पार्टनरशिप अपने आप को एक रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके रजिस्ट्रार को अपनी पार्टनरशिप फर्म फिक्स करवाती. दैट मीन्स दे वर मोर टुवर्ड्स रजिस्टरिंग दैट पार्टनरशिप फर्म. सो इट इज रजिस्टर्ड ऑफ पार्टनरशिप कंपल्सरी बट इट डिसेबल फॉर द नॉन रजिस्ट्रेशन विजुअल मेक इट कंपल्सरी. बट ये एट द सेम टाइम इससे पहले हमारी जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स थी दे कम्स इनटू द मोर टूवर्ड्स दी ओपन कि हाँ आप जा सकते हो कहीं भी किसी भी. तो इन दैट सेंस उसमें आपको कंपल्सरी पार्टनरशिप तो होती है बट एट द सेम टाइम आपको ज़रूरत नहीं होती रजिस्ट्रेशन करवाने की. सो दैट कम्स इनटू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. नाउ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको किस किस तरीके का प्रोसीजर चाहिए. सबसे पहला नेम ऑफ फर्म. यस आप अपने प्रोसीजर अपने रजिस्टर करवाने से पहले अपनी कंपनी का नाम बताओगे. सो दैट कम्स इनटू द नेम ऑफ फर्म. देन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. आपका प्रिंसिपल एग्जैक्टली कहाँ बैठता है, यानी कि प्रिंसिपल की कौन सी जगह है जिसने बिजनेस कंडक्ट करने की ठानी है या जो कंडक्ट कर रहा है. देन नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर ऑल्सो द फर्म्स कैरी ऑन द बिजनेस. अगर आपकी सेम उसी तरीके की कोई और फर्म है जो बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रही है तो उसके प्लेसेस के नाम भी बताना. नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स. आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बारे में
इन्फॉर्म करना. Then the date on which the each partner joins the firm. In that case आप जब उनके बारे में information दे रहे हो तो आप ये भी दोगे कि किस डेट पर उसने उसे ज्वाइन किया था, उस कंपनी को ज्वाइन किया था. Then the duration of a firm, that system signed by all the partners should send to the registrar of a firm along with the necessary registration fee of ₹3. Any charges in the above particular mention of a communication to the registrar within the 14 days. अगर आपको रजिस्ट्रार करवाना है तो आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो आप जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां पर जाके अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवाएंगे. देन उसके बाद यू हैव टू पे द फी, जो कि ₹3 ही है. और अगर उसके अंदर बाद में भी किसी तरीके की मॉडिफिकेशंस करवानी होती है तो द पर्सन हैव अ 14 days टू मॉडिफाई इट. देन इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. अगर आपकी कंपनी नॉन रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसका इफेक्ट क्या होता है? नॉन रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला इफेक्ट है एन अनरजिस्टर्ड फर्म cannot file a suit to enforce its claim against third party. If such right arises out of the possible to recover debt from the third party, it has no right even to demand a set off in any suit filed by its. Yes, that means कि आप being an unregistered company किसी को सूट नहीं कर सकते हो, किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते हो. Then another is right of a third party against the firm is not affected by the non-registration. It means that it can sue the firm for any of its partner. A partner of any unregistered firm cannot sue the firm or the other partners. So for enforcing his right under the partnership deed, however, his right to secure of the dissolution of the firm or for the as of the dissolved firm is not affected by the नॉन रजिस्ट्रेशन. तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वो किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती, पर उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके मेंबर्स के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं. सो यस, देयर वाज अ फ्यू क्वेश्चंस टू डू इट योरसेल्फ. सो सबसे पहला है एक्सप्लेन द काइंड ऑफ पार्टनरशिप. जितने भी अभी हम लोगों ने काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े हैं आपको उनको सबको एक्सप्लेन करना होगा. देन एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप. आपने पार्टनरशिप के डीमेरिट्स को एक्सप्लेन करेंगे, जितनी भी लिमिटेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए. एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की आपको किस तरीके से फर्म की रजिस्ट्रेशन करनी है. दैट इज ऑल about the today's session 4. So we were winding up for today, and from on session 5 we will going to discuss about company. What is company? So yes, for this, thank you so much.